رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة البقرہ آیت نمبر 16. لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ بتائیں گی شازیہ. اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے فما اور نہ پس نہ ربحت فائدہ پہنچایا تجارتہم ان کی تجارت نے وما اور نہ کانوا وہ سب تھے مہتدین ہدایت پانے والے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم باقی وما سب کانوا اپنا مائک مہتدین. میوٹ رکھیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ سب ہدایت پانے والے ہیں. نیکسٹ آپ شازیہ آپ میوٹ ہو جائیں. جی ہاں جی میں آسما سناؤں. جی آسما آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم مثال ان کی کمثل الذی جیسے مثال اس شخص کی ہے جو الذی استوقد نارا جیسے مثال اس شخص کی ہے جو جلائے آگ نارا آگ. فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا ما اس کا حولہ ارد گرد یا ماحول ذہبا لے گیا اللہ بنورہم روشنی ان کی وا اور ترکہم چھوڑ دیا ان کو فی بیچ میں ظلمات اندھیروں کے لا نہیں یبصرون دیکھتے. جی تھوڑا سا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے رات میں شب تاریک میں آگ جلائی اور جب اس آگ سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی ختم کر دی وہ اندھیروں میں چھوڑ دیا جیسے وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. پھر فاریہ آ جائیں آپ میوٹ ہو جائیں. سمن وہ بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم پس وہ سب لا نہیں یارجعون وہ سب لوٹنے والے. تو یہ سب منافقین کے بارے میں کہ وہ سب بہرے گونگے اور اندھے ہیں بس وہ واپس نہیں آنے والے وہ حکم کو نہیں ماننے والے. جی تھوڑا سا جی میں بتاؤں میم. دردانہ ہے آپ. جی میں دردانہ ہوں. آپ جو ہے نا اینڈ میں ذرا ایکسپلین کر دینا بھی آپ میوٹ رہیں. چلے جی نیکسٹ. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی نمانا ہے آپ. نو مس قلت زمین. چل کے جبین آپ سنائیں گی. او کسیبہ من السماء یہ ان کی مثال آسمانوں سے بارش کی طرح ہے. فیہ ظالمات و رعد و برقہ اس میں اندھیرے ہوں گرج ہو بجلی ہو. یسألون اصابعہم فی اذانہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. من الصواعق حذر الموت گھڑکوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. جی ماشاء اللہ. آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں نے اس میں بتایا کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں اور ان کی جو مثال ہے وہ بارش کی طرح ہے جس میں گرج ہے اندھیرے ہیں بجلی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مطلب سن نہیں رہے وہ اس بات کو. اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہے وہ. کیا وجہ ہے یہ بجلی اور کڑک کیا وجہ ہے اس کی. انہوں نے ایک مطلب مثال دی ہے. جی مثال اس طرح دیا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو وہ
कड़क और बिजली, यानी कि उनकी मुश्किल आयतों को, मुश्किल अहकामात को ऐसे लेते हैं जैसे कड़क और बिजली हो, जैसे बिजली और कड़क से हम डरते हैं ना, ऐसे आयत पे अमल करने जी। से डरते हैं। ठीक है, क्या जमीन आप नशीन है? नशीन तो वैसे कल आई थी, नशीन है इधर जी। नेक्स्ट नुमाना आप आ जाएं, आप म्यूट हो जाएं। जी नुमाना। नुमाना नहीं है यहाँ? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। जी 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 और कुछ ये भी इनसे करना है, मुझे जी 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 स्क्रीन यही शो से नहीं हो रही। नहीं, ये कादुल पर। अच्छा, यकादू करीब है अलबरकु बिजली यख्तफू के वो उचक ले अबसारहुम उनकी निगाहें या उनकी आंखें कुल्लमा जब कभी अज़ाआ वो रोशन करती है लाहुम उनके लिए मशाओ तो वो चल पड़ते हैं फीही उसमें। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जब कभी रोशनी होती है तो वो चल पड़ते हैं। वाइजा और जब अजलमा अंधेरा हो जाता है अलैहिम उन पर कामू तो वो रुक जाते हैं, और जब कभी उन पर अंधेरा हो जाता है तो वो रुक जाते हैं। वलौ और अगर शाह चाहे अल्लाह अल्लाह लज़हबा तो वो अलबत्ता वो ले जाए बिसमइहिम उनके कान व अबसारिहिम और उनकी आंखें इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह अला कुल्ली हर चीज पर शयइन हर चीज पर अला पर कुल्ली हर शयइन चीज कदीरुन कादिर है, ये कुदरत रखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और कुदरत रखने वाला है। जी थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगी नुमाना? यस मैम। यस। वो ये है कि जब कभी रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं, उसका मतलब है कि जब भी कोई काम जो उन्हें आसान लग रहा होता है, कोई हुक्म अल्लाह ताला का जो उनके लिए इजी होता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर अमल कर लेते हैं। जैसे नमाज पढ़ना है तो वो वजू किया और बस जब दिल किया तो पढ़ ली उठ के, और जब ना किया तो ना पढ़ी। और जब कोई मुश्किल काम होता है तो वो उसमें रुक जाते हैं। जैसे पर्दा है आजकल जो हमारे माशरे में जो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, तो पर्दा तो हम नहीं करते, और बाकी जो छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें इजी लगते हैं वो हम कर लेते हैं। मतलब अपनी मर्जी के कामों को कर लेना, और जो मर्जी में ना हो, और जो थोड़े जिनके लिए कुर्बानी देनी पड़े, ज़कात देनी पड़े, सदका देना पड़े, माल को खर्च करना पड़े, तो इस तरह के कामों में रुक जाते हैं, उन कामों पे अमल नहीं करते। नहीं, माल देना बहुत आसान है, जान देना बहुत मुश्किल, मतलब टाइम देना बहुत मुश्किल है। माल तो हर कोई देता है, फिरता है। नहीं मैम, जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सदका देने से भी थोड़ा घबराते हाँ हैं। हाँ, इस तरह भी होता है। ज़कात खास तौर पे जिनके पास ज्यादा हो तो ज़कात भी उनकी ज्यादा निकलती है, तो फिर उतनी तो नहीं देते ना, हाँ बस थोड़ा ठीक बहुत है, हाँ जी दिया बिल्कुल दे सही बात दिया। है। चलिए जी बेहतरीन, अब तो आ जाए दुर्दाना, जरा आप अनम्यूट हो तो थोड़ी थोड़ी मैं मिसालें देती जाए। जी दुर्दाना, इसकी मिसाल दीजिए, एक एक मिनट से हमें एलिब्रेट करती जाए दुर्दाना। जी जी हर आयत पे। मतलब ये कि अस्सलाम वालेकुम मैम, यहाँ पे वो मुनाफिकीन के बारे में बताया गया है कि वो गुमराह हैं, और मतलब ये वो फायदा अपने लिए फायदे का काम नहीं करते, वो नफा का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम भी इसी तरह के हैं कि हम भी मुनाफिकीन की तरह से हैं, क्योंकि हम भी इस्लाम में से वो कुछ ले लेते हैं जो हमें अपने फायदे का नजर आता है, और वो सब छोड़ देते हैं जिसमें हमें अपना फायदा नजर नहीं आता। जैसे इन्होंने बोला कि शरी पर्दा है, शरी पर्दा हमें काफी मुश्किल लगता है कि वो हम नहीं करना चाहते, उससे हमें बहुत सी पाबंदियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो फिर हमारा भी शुमार मुनाफिकीन में होगा, क्योंकि हमने इस्लाम में से वो चीजें तो ले ली हैं जो हमें फायदे की नजर आ रही हैं, और वो चीजें छोड़ दी हैं जिसमें हमें अपना फायदा नहीं आ रहा। और इस यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मुनाफिकीन के बारे में कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मदीने में इस्लाम की रोशनी लेकर आए थे, सहाबा इकराम वगैरह सबकी मिसाल थी, और वहाँ पे काफ़ी लोग मुसलमान हो रहे थे, मगर मुनाफिकीन जो थे वो नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें तो इस्लाम की ले रहे थे, बाहर की चीज़ें वो नहीं ले रहे थे, जिसके वो समझते थे कि पाबंदियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जी मैम, और एक्सप्लेन करूँ? जी जी, ये सुमन बुकमन को थोड़ा सा करें।
हाँ, वो सुनना नहीं चाहते, ना वो गूंगे बहरे हैं कि वो ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। मतलब हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हम इस्लाम की बहुत सारे अहकामात को, जैसे ये वो कुरान शरीफ का तफसीर वगैरह है, हम वो इतनी नहीं सुनना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हम पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर हमें फिर उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो इसी तरह से वो मुनाफिकीन का कहा है कि मुनाफिकीन भी वही हैं कि वो सब कुछ सुन रहे थे, उस जमाने में भी सुन रहे थे, अभी भी यही हाल है कि वो सब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर वो अमल नहीं करना चाहते, क्योंकि जब वो अमल करेंगे तो उनको पाबंदियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और पाबंदियां वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जैसे काफिर इसको थोड़ा सा आजादाना तौर एक्सप्लेन पर कर दे। गुजार रहे थे। मुरादुम जी, मुबारक, मुरादुम मुबारक, मुराद और बर्क, बिजली और कड़क। जी जी, बिजली और कड़क। बिजली और कड़क, जी हाँ, वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जब बारिश होती है तो उसमें बिजली भी कड़कती है और बादल भी, तूफान भी आता है, सब कुछ आता है। तो इस्लाम भी इसी तरह से, इस्लाम के अहकामात कि ये हैं कि जब बारिश से हमें पानी से बहुत सैराब होते हैं तो फायदा होता है, इसी तरह से जब बिजली कड़कती है, तूफान आता है तो हमें नुकसान होता है। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि इस्लाम में के दायरे में दाखिल होने के बाद हमें बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो कि हमारे फायदे के हैं, वो हम ले लेते हैं, और जो हमें, जिससे हमें कहते हैं पाबंदियां बर्दाश्त करनी पड़े, तो वो हम नहीं लेना चाहते। जी, वो हमें रात और कड़क लगती है कि हम जिहाद कैसे करें, और इस तरह से। चलें जी, ठीक है। और अल्लाह ताला मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं, और जी आसान काम जो है इस्लाम के, वो हम अपनाते रहते हैं। अपनाते ये रहते हैं। हमें भी क्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा हैं बल्कि। देखिए आप हमें अल्लाह डराए तो बचाए ना। बस। बस वाकई अल्लाह रहमल्लाह बचाए। जअलना ये फीहिम। पढ़ने के बाद, वो मुनाफिकीन का पढ़ने के बाद के वाकई हमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज है, वाकई डर लगने जी जी, लगा है। हमें आप जैसे स्टूडेंट की जरूरत है, ताकि वो हमें जगाती रहे कि देखिए अब आप में नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए जी, कोई रह गया सुनाने वाला? और अल्लाह ताला चाहते तो लिटरली इनको अंधा कर देते। देखें एंड में वो कह रहे हैं कि वो चाहते तो अल्लाह ताला इनके समात और बिसात ले जाते, वो तो कादिर है हर चीज पे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें करना चाहिए। अच्छा ठीक, कोई सुनाने वाला रह गया तो ठीक है, वरना तो हम मीटिंग एंड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं शाजिया फैसल। मैम जी कल हाँ। थी ना मेरी क्लास, तो फिर आज मैंने अटेंड किया, कल जी नहीं जी, कर सकी थी। चले जी, आप कुछ बताना जी चाहेंगी? कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन या कोई एक्सप्लेनेशन? नहीं मैम, जो सुनना चाहती हैं अब मैं सुना देती चले हूँ। ये जो लिखा हुआ है पता नहीं, हज़र अल मौत वल्लाहु महीतुन बिल काफिरीन। जी। मौत के डर से वल्लाह और अल्लाह काफिरों को घेरे में लिए हुए है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसका क्या मतलब है? कैसे अल्लाह ताला ने काफिरों को घेरा हुआ है? वो तो जो मर्जी आजाद फिर रहे हैं। काफिरों को जी देखें, जी उनकी तो आजाद फेरे, प्रॉपर्टी भी लेकिन ज्यादा है, उनको तो आप थोड़ा सा बाहर जो रहते हैं वो देखिए, उनके पास तो सड़कें भी आला है, उनके पास तो गाड़ियां भी बेहतरीन है, उनके पास तो पैसे की भी टेंशन नहीं है, और बच्चे भी उनके गोरे गोरे पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कैसे जी जी घेरा हुआ है? अल्लाह घेरा तो हमें हुआ है, अल्लाह हम तो हर वक्त परेशान हैं, हमारे लिए टेंशनें ज्यादा हैं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। तो इसका क्या मतलब जी हुआ? अल्लाह अल्लाह ताला ने काफिरों को घेरे में लिया हुआ है, मतलब कि अल्लाह ताला करने को, जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पे बार बार वार्न कर रहे हैं, कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ढील दी हुई है कि वो जी जितनी वो कर सकते हैं ना, जितना वो मतलब के गुमराही में जा सकते हैं, या जितनी वो नाफरमानियां कर सकते हैं वो कर लें, ताकि फिर अल्लाह ताला इनका उनको अज़ाब यानी कि अच्छे तरीके से फिर अज़ाब देंगे। हाँ, हुज्जत तमाम हो जाए। और इसका जी, मतलब, मुहित हुज्जत का तमाम मतलब हो ये जाए। भी है कि सीसीडी कैमरे लगे हुए हैं जी। जी, जी। जो करना है अल्लाह कर लो, ताला लेकिन देख रहा अल्लाह है। ताला अस्सलाम देख वालेकुम। रहे हैं। चलें जी। जी, अल्लाह अब ताला देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है किसी का? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, दुर्दाना जी। ये मैं ताहिरा ताहिरा जी रिजवान। जी ताहिरा। जी, ये हज़र अल मौत वल्लाहु मुहीतु बिल काफिरीन के दुनिया में, तो ये आप कह रही है ना कि काफिरों को सब कुछ मिल रहा है, जी तो जी दुनिया में तो ढील है, और अल्लाह ताला ने घेरा हुआ ऐसे है कि अल्लाह ताला उनको देख रहा है, उनके सारे अमाल, और आखिरत में जो है वो उन्हें जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अल्लाह ताला हमको भी देख रहा है, काफिरों को भी देख रहा है, हमारे काम भी अब काफिरों जैसे ही हो गए हैं,
نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں اور کام ہم سارے غلط کر رہے ہیں. قرآن بار بار ہم کو جو ہے خبردار کر رہا ہے کہ دیکھ لو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ گھیر دے گا کسی وقت بھی, اچھا چاہے تو جی, دنیا میں ہاں جی, آپ اور نے جب بالکل چاہے اچھی تو بات آخرت میں. بتائی ہے. تو کافر کا مطلب یہاں پر پہلے بھی میں آپ کو 2-3 دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہ نا کوالٹی کی صفات ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ فلاں کافر ہے یہ والا. اس میں سے کافر ہم بھی ہو سکتے ہیں, جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا, تو ہم نہیں ہوں گے ان میں. ٹھیک ہے, ہماری مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہمیں پتا چلے کہ ہمارے اندر پرابلم ہو رہی ہے تو ہم اس کو فوراً سے اس کو ایلیمینیٹ کرتے جائیں, کیونکہ ہم کفار میں نہیں آئے, منافقین میں نہیں آئے, ہم آئیں گے متقین میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی, آپ کس میم کلاس میں اس میں تھوڑا سا میں کہتی ہوں یہ کافرین میں نا اس جی کو جی یہ کوشچن جیسے یہ بنتا ہے کہ منافقین کو یہاں کافرین کیوں کہا گیا. یہاں بات تو منافقوں کی ہو رہی ہے لیکن ان کو کافرین کیوں بالکل کہا بالکل گیا ہے. اس کو بالکل اس لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو کافرین اس لیے کہا گیا کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہوتا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. تو منافقین جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اینڈ میں کافروں میں ہی شمار ہو جائیں گے نا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, ابن ماجہ کی دعا ہے. ٹھیک ہے, چلے جی. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین. جی, میم نے جو دعا بتائی تھی وہ انشاءاللہ آپ لوگ یاد کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی دعا مانگے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. میم یہ والی دعا بھی آپ